It is my pleasure to introduce today's moderator, Ms. Manisha Bambal. Ms. Manisha Bambal, a dedicated and seasoned educator, Ms. Manisha has devoted over 2 decades to nurturing young minds through the lens of Hindi literature. A postgraduate in Hindi with a B.Ed from Madhya Pradesh, she serves as a head of Department of Hindi with 20 years of distinguished service in the teaching profession. For the past 11 years, Ms. Bambal has been actively involved in the CBSE Class 10 and AHE evaluation processes, demonstrating a commitment to academic excellence and integrity in assessment standards. Her passion lies not only in teaching but also in truly understanding and supporting her students, guiding them through challenges with empathy and wisdom. Beyond the classroom, Ms. Bambal is a connoisseur of poetry and dance, often weaving creativity into her teaching methods. Her amicable relationships with students, parents, and colleagues have earned her deep respect and several accolades, including Guru of Calm and Compassionate, awarded by her school. A special school honor for guiding students to a perfect 100 out of 100 in Hindi. She plays a strategic role in curriculum development, serving as a committee member for all school branches, and shoulders the critical responsibility of classroom observation and mentorship for Hindi educators across the institution. Hearty welcome, Ms. Manisha. Please proceed. The stage is yours. Yes, Manisha ji, over to you. जी जी, धन्यवाद सर। इस आत्मीय और गरिमामयी परिचय के लिए धन्यवाद। सभी को शुभ संध्या। मैं एक्स्ट्रा माइल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की ओर से आप सभी शिक्षकों और प्रतिभागियों का हृदय से स्वागत करती हूँ। आज आपकी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि आप शिक्षा की उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्ध हैं और भावी पीढ़ी को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए सदैव तत्पर हैं। एक्स्ट्रा माइल एजुकेशन ट्रेनिंग डॉक्टर अब्दुल सलाम के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ट्रांसफॉर्मर एंड है। यह मंच देश भर के शिक्षकों को ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यमों से सशक्त बनाने हेतु उपयुक्त, सार्थक और व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराता है। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि आज के इस सत्र की संचालनकर्ता के रूप में आपके समक्ष उपस्थित हूँ और इस अवसर के लिए डॉक्टर सलाम सर एवं एक्स्ट्रा माइल की पूरी टीम की आभारी हूँ। आज का सत्र एक प्रभावशाली शिक्षण पद्धति पर केंद्रित है। व्याकरण के रंग काव्य के संग। सत्र की विशेषता यह है कि इसमें व्याकरण को कविता और गतिविधियों के माध्यम से खेल खेल में उपायों से परिचित कराएगी। इस सत्र के अंत तक आप कुछ ऐसे उपाय लेकर जाएंगे जो आपकी योजना में 4 चांद लगा देंगे। आप सीखेंगे कि कविता गतिविधियों और खेलों के माध्यम से व्याकरण को रोचक, सरल और जीवंत रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। शिक्षण को रटने के बजाय करना चाहूंगी। सत्र के दौरान कोई प्रश्न हो तो कृपया उसे चैट बॉक्स में लिखें। आदरणीय विनोद सर जी, Manisha ma'am, and all participants, thank you so much for joining. In fact, we are having busy schedule. School started, but it's always a pleasure to listen to Vinod sir and learn so much so that we keep ourselves updated. We know grammar, the importance of grammar, but the way the grammar should be taught is all making our classroom very interesting. So the ways Vinod sir will show you how to teach grammar. Please accept and adopt it in the classroom so that we can be very good teachers just like Vinod sir. So take this opportunity, grab this opportunity. Such opportunities are very rare.
And we are very happy and blessed to have such a very good teacher, an inspiring teacher, a role model for all of the teaching community. So let's make use of whatever lessons we get from Vinod sir in our classroom, so that we will become extraordinary teachers like him. Thank you so much for joining. Let's have a wonderful and enjoyable session today as usual. Thank you so much. Over to Manisha, ma'am. Manisha ji. जी, थैंक यू सर। धन्यवाद सर। आपके प्रेरणास्पद विचारों और शिक्षा के प्रति आपके सतत समर्पण के लिए हार्दिक धन्यवाद सर। हमारे साथ आज और एक विशिष्ट अतिथि जुड़े हुए हैं, आदरणीय श्री बिजू एस पिल्ले सर, श्री चित्रा पब्लिक स्कूल तिरुवनंतपुरम के सम्मानीय प्रधानाचार्य। आप विद्यालय नेतृत्व के क्षेत्र में एक सशक्त स्तंभ हैं। सर, आपका यहाँ हार्दिक स्वागत है। सर, मुझे लगता है सर नेटवर्क इश्यू है, बिजू सर का अभी उपस्थित Disconnected. You नहीं है, can go ahead. तो जी 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 जी। और अब आज के सत्र का सबसे प्रतीक्षित भाग आ गया है। जी हाँ, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है। मैं अत्यंत प्रसन्नता के साथ आज के मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर विनोद प्रसून सर जी का परिचय देने जा रही हूँ। डॉक्टर विनोद प्रसून सर हिंदी शिक्षण में अपने नवाचारों, सहज व सरल युक्तियों और व्याकरण संबंधी अवधारणा गीतों के लिए प्रसिद्ध है, जिनकी मधुर लय और सरल शब्दावली ने उन्हें विशेष पहचान दिलाई है। आप विगत 3 दशकों से अध्यापन, लेखन और हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। आपने CIET, NCERT, CBSE, COE, भारत सहोदया कॉम्प्लेक्स जैसी प्रमुख संस्थाओं में हिंदी संसाधक व विषय विशेषज्ञ के रूप में कार्य किया है। आप NCERT की कक्षा 1 व 2 की पाठ्यपुस्तक सारंगी के निर्माण समिति के सदस्य भी रहे हैं। वर्तमान में दिल्ली पब्लिक स्कूल ग्रेटर नोएडा में हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। आपका शिक्षण दर्शन, अपन सूत्र और पढ़ो और पढ़ाओ देश भर के हजारों शिक्षकों के लिए प्रेरणा स्रोत बना है। आप उन्मेष, उद्गम कक्षा 1 से 8 और सार्थक हिंदी व्याकरण कक्षा 1 से 10 जैसी चर्चित पुस्तकों के लेखक हैं। एक कवि के रूप में आप आकाशवाणी, दूरदर्शन व अन्य मंचों से जुड़े रहे हैं। आपके प्रकाशित काव्य संग्रहों में प्रणय प्रसून, अक्कड़ बक्कड़ जो कि बाल गीत है, और मेरे उसके बीच गजल शामिल है। आपको साहित्य श्री सम्मान, हिंदी सेवा रत्न, स्टार रिसोर्स पर्सन अवार्ड, सरस्वती शिक्षण सम्मान आदि सहित अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया है। आप देश विदेश में आयोजित हिंदी कार्यशालाओं एवं साहित्यिक कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। आपके सम्मान में कुछ कहना अर्थात सूरज को दीपक दिखाने जैसा होगा। मैं अपनी साधारण कलम से आपको शब्द सुमन अर्पित करना चाहती हूँ। कुछ त्रुटियां हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। नवाचारी शिक्षा के प्रवर्तक आप हैं, एक महान शिक्षक। नव विचारों के आप दीप जलाते, ज्ञान ज्योति से तम हर लेते। विद्या रूपी गगन के आप है सितारे, आप ही हमारे पथ के सहारे। विनम्रता में बसी है महत्ता, शिक्षा क्षेत्र में बनी रहे सदैव आपकी दृढ़ सत्ता। प्रसून उपनाम की तरह कोमल स्वभाव, प्रसून उपनाम की तरह कोमल स्वभाव, हर शब्द में जैसे सूरों की छाव। कोमलता में गहराई न्यारी, मानो हो बुद्धि और भावों की क्यारी। पथ दिखलाते हैं हर अंधियारे में आप, सौभाग्य ये है कि हमारे मार्गदर्शक हैं आप। सिर्फ शिक्षक नहीं, प्रेरणा की मूरत है आप। हर समस्या, हर चुनौती का हल है आप। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सदैव स्वस्थ, सुखी एवं प्रसन्न रहे। आपके कुशल मार्गदर्शन में हमें भी सफलता का मार्ग मिलता रहे।
आपके कुशल मार्गदर्शन में हमें भी सफलता का मार्ग मिलता रहे। इस आभासी मंच पर आपका स्वागत है सर। हार्दिक धन्यवाद बहन। बहन की स्नेहिल शुभकामनाएं सचमुच मेरा सौभाग्य। आदरणीय सलाम सर, बीजू सर, मनीषा बहन और सभी हिंदी सेवी बहनों भाइयों, मैं गदगद हूँ। एक बार फिर से आपसे बातचीत करने का मुझे अवसर मिल रहा है और निश्चित रूप से आपकी जो गरिमामयी उपस्थिति है वह मुझे गौरवान्वित कर रही है। अ, कार्यशाला का आरंभ करते हैं और निश्चित रूप से आज जो विषय है बहुत अच्छा है कि व्याकरण के रंग काव्य के संग। तो कैसे काव्य में पिरो के व्याकरण को पढ़ाया जाए, आज हम वहीं से शुरू करेंगे। किसी भी कार्यक्रम को शुरू करते हैं तो अगर हम अपने अपने आराध्य को नमन कर लें तो हमारा कार्य फलित होता है। तो मैं सभी भाई बहनों से कहूंगा कि अपने अपने आराध्य को एक बार नमन कर लें, हृदय से नमन कर लें। परम श्रद्धेय मां शारदा को नमन करता हूं, आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति को मैं नमन करता हूं। शुरू करते हैं आज का सत्र। और आज का सत्र बहुत ही प्रभावी है। मैं स्क्रीन शेयर ये पीपीटी शेयर कर रहा हूं आपके साथ में, देखिएगा आप तक पहुंच गई। अ, व्याकरण के रंग काव्य के संग। और शुरुआत करेंगे अभी। जैसे सितंबर में आप सब हिंदी दिवस, हिंदी सप्ताह, हिंदी पखवाड़ा आप मनाएंगे तो गीत गाते हैं पहले। और क्योंकि आज काव्यमय है पूरी कार्यशाला, तो हम पहले एक बार गीत गाते हैं और देखें। सब भी गा सकते हैं जहां बैठे हुए हैं, है ना। हिंदी को नमन करना है हमें, अपनी भाषा को। तो आप देखिए, गाइए। और इस गीत को मेरा अनुरोध है, इसका फोटो क्लिक कर लीजिएगा और इसको जरूर करवाइए। अब की बार हिंदी सप्ताह में, हिंदी पखवाड़ा अगर मना रहे हैं तो पखवाड़े में इसको जरूर करवाइएगा। देखिएगा, सुनिएगा। सरस सरल मनुहारी है, अपनी हिंदी प्यारी है। सरस सरल मनुहारी है, अपनी हिंदी प्यारी है। मीठे शब्दों वाली है, यह फूलों की डाली है। भारत की पहचान लगे, हिंदी हिंदुस्तान लगे। भारत की पहचान लगे, हिंदी हिंदुस्तान लगे। अद्भुत शान हमारी है, अपनी हिंदी प्यारी है। कबीरा का आखर ढाई है, तुलसी की चौपाई है। यह भावों की सरिता है, मीठी मोहक कविता है। सुरभित है, उजियारी है, अपनी हिंदी प्यारी है। अपनी हिंदी प्यारी है। अक्षर रस के छींटे हैं, शब्द शहद से मीठे हैं। अक्षर रस के छींटे हैं, शब्द शहद से मीठे हैं। यह मन में बस जाती है, जीवन को महकाती है। खिली खिली फुलवारी है, अपनी हिंदी प्यारी है। खिली खिली फुलवारी है, अपनी हिंदी प्यारी है। कैसा लगा आपको ये गीत? एक बार चैट बॉक्स में आ जाइए। बहुत सुंदर। एक बार बताइए आपको गीत कैसा लगा, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। जी। योगेश जी कह रहे हैं, आदरणीय अत्यंत मधुर कंठ है बहुत आपका। बहुत सबका हार्दिक आभार। अब मैसेज आ गए, मैं यही देख रहा था कि मैसेज आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका हृदय से धन्यवाद, है ना। आप सबको अच्छा लगा, मेरा सौभाग्य है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं विषय पर। आज का विषय, जैसे हमने कहा, बहुत ही अच्छा विषय, व्याकरण के रंग काव्य के संग। और काव्य देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं 10वीं कक्षा से। समास गीत सुनाता हूं, उसके बाद छोटी कक्षाओं पर भी आएंगे जहां ड़ ढ़ का अंतर है। और भी नए गीत हैं, क्रिया विशेषण गीत है और विशेषण गीत है ना। और की के अंतर का एक गीत है। तो आज काव्यमय होने वाला है ना। तो देखिएगा, आप सब सुनने के लिए तैयार हैं। और देखिए, कविता को कविता के रूप में हम सुनेंगे।
विधियां आएंगी इसमें, कैसे हम समास के बारे में बताएं, क्या सरल युक्ति हो सकती है। और आप देखेंगे कि गीत अवधारणा गीत है, लेकिन जब हम क्लास में जाते हैं तो हम बोर्ड का भी प्रयोग उन युक्तियों के साथ बोर्ड पर उन युक्तियों का प्रयोग करते हैं जो हमने गीत में हमने आत्मसात किया या बच्चों को सुनाया, तो बाद में बोर्ड पर भी हम उसका प्रयोग करके दिखाते हैं। यहां देखिए, ये आप देखिएगा, तब मैं गीत सुनाऊंगा, क्योंकि यह प्रमुख है कि केवल काव्य से बच्चे आकर्षित होंगे, सीखेंगे सरल युक्तियां, लेकिन हमें कहीं ना कहीं बोर्ड का प्रयोग करना पड़ेगा, सरल युक्तियों को हमें बोर्ड पे लाना पड़ेगा। तो आप एक बार सुनिए, आपको आनंद आएगा, क्योंकि आप साहित्य प्रेमी हैं, है ना, और हिंदी के सच्चे सेवी हैं, निष्ठावान सेवक हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये गीत आनंद देगा। और गीत कैसे कक्षा स्तर पर ढलेगा आप देखिएगा। सुनते हैं इस गीत को आप। छोटा या संक्षिप्त रूप में है समास का अर्थ यही, अगर भेद भी आ जाए तो फिर कविता यह व्यर्थ नहीं। छोटा या संक्षिप्त रूप में है समास का अर्थ यही, समझ भेद भी आ जाए तो फिर कविता यह व्यर्थ नहीं। दो पद मिलकर एक बने जब वे समस्त पद कहलाते, अगर खोल उनको लिख दें सामासिक विग्रह बन जाते। पूर्व पद कहलाता पहला और दूसरा उत्तर पद, एक दूसरे के स्वभाव गुण दोनों को भाते बेहद। सच कह दें तो जीवन में भी मेल जोल जब बढ़ता है, और रिश्ते नातों में भी तब तब रंग प्रेम का चढ़ता है जी, रंग प्रेम का चढ़ता है जी, रंग प्रेम का चढ़ता है। और कुल छह भेद हुआ करते, अध्ययनरत रह लें देशाटन, अध्ययनरत रह लें। तो तत्पुरुष आसानी से समझ में आया, इतने सारे उदाहरण है, हमने चर्चा की, जब गीत सुनाया तो चर्चा की। सेना नायक सेना का नायक, रण कौशल रण का कौशल, शौर्य कथा शौर्य की कथा, आदि आदि, है ना। अब आगे, पंचक्की घोड़ा गाड़ी हथकड़ी युधिष्ठिर पहचानो, अलग तत्पुरुष समास, युधिष्ठिर का भी उदाहरण, हालांकि हमारे बच्चे तो तत्पुरुष समास ही लिखेंगे, युद्ध में स्थिर रहने वाला तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, लेकिन उदाहरण उनके पास होना चाहिए, क्योंकि उसमें आया, अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले में, तो आ सकता है, आ सकता है, तो बच्चे को पता होना चाहिए विग्रह। पंचक्की घोड़ा गाड़ी हथकड़ी युधिष्ठिर पहचानो, दही बड़ा हथकरघा सबको तत्पुरुष महोदय मानो। अकर्मण्य अज्ञान अनिच्छा न्यो तत्पुरुष समझ लेना, जब अन आए पहले न्यो कह करके उत्तर देना। नहीं कठिन तत्पुरुष रहा कारक चिन्हों से जान लिया, उत्तर पद इसका प्रधान है यह भी हमने मान लिया जी, यह भी हमने मान लिया जी, यह भी हमने मान लिया। तो हमने, अब अगर बच्चे ने गीत सुना है और उसको कारण लिखने के लिए आ गया, उदाहरण दिया सेना नायक और कारण भी बताएं, तो बच्चा लिख देगा। इसमें कार की विभक्ति का लोप है ना, का विभक्ति का लोप है, तो बच्चे को आएगा। अब वे भाव देखते हैं। सामासिक पद अव्यय में ढल छटा निराली बिखराते, तीन तरह से बनते हैं ये इनसे पहचाने जाते। आबा भर प्रति यथा निस आदि ये अव्यय पद निर्माण करें, इन्हें सीख कर बच्चों अपने मन का शब्दागार भरें। आजीवन बाइज्जत भरसक प्रतिदिन यथा समय आए, निस्संदेह निर्बाध सहजता से यह मन में बस जाए। गली गली और गांव गांव, गली गली और गांव गांव पल पल में हर का रस घोले, यानी जो रेखांकित है उसमें हर का रस है, यानी हर का भाव छुपा हुआ है, हर गली हर गांव हर पल आदि। तो ये सब अव्ययी भाव बन गए, बतलाते हैं बिन बोले जी, बतलाते हैं बिन बोले जी, बतलाते हैं बिन बोले। हाथों हाथ समझ कर बातों बात इसे मन में रखना, और दिनों दिन इस समास का स्वाद सहजता से चखना। साफ साफ कहना समझाना चले न कानों कान पता, बनो जीनियस इन वाक्यांशों में बस अव्ययी भाव बता। यथाशक्ति पल पल नित नित हो या फिर बीचों बीच कहें, सदा सर्वदा ये सबके सब ये सबके सब बनकर अव्यय संग रहें। ये युक्तियां अगर जान ली यह समास आ जाएगा, इन तीनों ही पहचानों से बाहर कब जा पाएगा जी, बाहर कब जा पाएगा जी, बाहर कब जा पाएगा। अब देखिएगा, जब बोर्ड पे हम समझाएंगे
तो कैसे आ जाएगा अव्ययीभाव? ये आ गया। आप देखिए अव्ययीभाव बिल्कुल जो गीत में है वो कहीं इसमें आ गया, है ना। तीन प्रकार से पहचान हो गई। जब गीत भी सुन रहा है बच्चा, बोर्ड पर उसको समझाया भी जा रहा है, तो कहीं अवधारणा मन में बस जाएगी, आत्मसात होगी। और हमारी नई शिक्षा नीति, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, वह कहती है कि हमें अवधारणाएं आत्मसात करवानी चाहिए, रटवानी नहीं। तो यह प्रयास है। काव्य में कैसे व्याकरण पढ़ाया जाता है आप देखेंगे, आपके शुभकामनाएं मिलती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आपको पसंद आती हैं ये जो प्रयोग हैं ये पसंद आते हैं तो अच्छा लगता है। अब आप देखिएगा, हम थे अव्ययी भाव पर, हमने अव्ययी भाव किया। कर्मधारय एक कठिन समास, लेकिन गीत में कैसे ढला, कैसे बोर्ड पर समझाया गया, आप देखिएगा। है जो रूपी, है जो रूपी के समान विग्रह करने पर जब आए, कर्मधारय तब होता है ये सब ऐसा बतलाएं। प्रथम विशेषण और दूसरा बन विशेष्य आ जाता है। ऐसे में है जो विग्रह के संग हमेशा आता है जी, संग हमेशा आता है। नील गाय और कहो महोत्सव, सुन लो सामासिक कलरव। नीली है जो गाय देखिए और महा है जो उत्सव। शुभचार सद्भाव कहें या शुभागमन शुभ कर्म कहें। उदाहरण आपको बहते हुए दिखाई देंगे, नए उदाहरण है ना। सुविचार, अच्छे हैं जो विचार, सद्भाव, अच्छे हैं जो भाव, है ना। शुभागमन, शुभ है जो आगमन, ऐसे कितने सारे नए उदाहरण आपको दिखाई दे रहे हैं। पीत पुष्प नीला, अंबुज नीला, काश सुयश धर्म कहें। है जो इनके बीच लुप्त है विग्रह पर आ जाएगा। रूप विशेषण और विशेष्य का खिल खिल कर मुस्काएगा। विग्रह करके देखें इनका, इनको आत्मसात कर लें। बड़ी सहजता से इन सबको हम मन के अंदर भर लें जी, हम मन के अंदर भर लें जी, हम मन के अंदर भर लें। तो सहजता से बच्चे को पता चल गया विशेषण विशेष्य का संयोग होगा तो है जो आएगा, है ना। एक और है रूप देखिए, है उपमेय उपमान लिए। मन थोड़ा एकाग्र करें तो सहज सरल पहचान लिए। क्रोध बहुत बढ़ जाता जब वह अनल ज्वाल सा बन जाता। क्रोध यहाँ उपमेय और उपमान अनल है कहलाता। क्रोधानल या क्रोधाग्नि में, चरण कमल भवसागर में। और उपमेय और उपमान भर गए हैं कविता की गागर में। क्या उपमा उपमेय होता है, क्या उपमान होता है, गीत में भी समझाया गया। क्रोध चरण भव की तुलना की, इस हेतु उपमेय कहें। जिसकी तुलना की वह उपमेय, जिससे तुलना की वह उपमान। अनल कमल सागर से की है ये तीनों उपमान रहे। तो जिसकी तुलना की वह उपमेय, जिससे तुलना की वह उपमान। अब आप देखिए, बोर्ड देखिएगा, आप देखिएगा बोर्ड, है ना। है जो से हमने विशेषण विशेष्य को समझाया, हमने उपमेय उपमान को समझाया। देखिए यहां पर भी लिखा है जिसकी तुलना की जाए उपमेय और जिससे तुलना की जाए उपमान। तो जो गीत में है वह कहीं अवधारणा बिल्कुल अच्छी तरह से बन के, अवधारणा बन के, सरल युक्ति बन के कहीं बोर्ड पर आता है। और जब बोर्ड पर आता है तो बच्चे मन में बसाते हैं, है ना। तो दो जगह हो जाता है, एक बार वो गीत सुन रहे हैं, एक बार इस प्रकार उनको समझा दिया जाए तो सहजता से उनको व्याकरण सरस लगने लगता है। खुद कहते हैं सर एक बार व्याकरण गीत, है ना। तो व्याकरण गीत सुनना पसंद करते हैं। देखिए कहाँ तो व्याकरण नीरस कहा जाता है ना। कहाँ बच्चे कह रहे हैं कि उनको व्याकरण गीत सुनाया जाए, तो अंतर आ जाता है, शैलीगत अंतर। और जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं हम सब निष्ठावान हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम उसको सरस ना बना पाए। सरस बना रहे हैं, आप सब सरस बना रहे हैं तरह तरह के प्रयोग करके। मैं तो अपने अनुभव आपके साथ बांट रहा हूं कि अगर ऐसा किया जाए तो और सुंदर हो सकता है ना। और हम कहीं सरस बना सकते हैं जब गीत के माध्यम से हम उनको पढ़ाएंगे। बाकी तो आपकी शैली कहीं ना कहीं बच्चों के दिल में उतरती होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, इसको आपने देखा, सब कुछ है। उपमेय उपमान आ गया। कब उपमेय, जब उपमेय उपमान होगा तो बीच में रूप ही आएगा। जब उपमान पहले आ जाए और उपमेय बाद में आ जाए तो फिर के समान आ जाएगा, उपमान के साथ के समान जुड़ेगा। अब गीत में पहुंचते हैं, देखिए।
पहले यदि उपमेय लगा हो, फिर आए उपमान जहां, लगा बीच में रूपी करते सामासिक विग्रह वहां। भव रूपी सागर, भव सागर में रूपी की छटा दिखे, विद्याधन संतान रत्न में इसका ही सौंदर्य सजे। पहले गर उपमान लगा हो, अब देखिए नियम आ रहा है, पहले गर उपमान लगा हो के समान संग खोलेंगे, अमृत के समवाणी अमृतवाणी कहकर बोलेंगे। स्वर्णलता और कनकलता में शशिमुख अमृत वचनों में, के समान की सुंदरता का रूप बसा अब नयनों में। है जो रूपी के समान से इस समास को जाना है, उत्तर पद इसका प्रधान है, सही सही पहचाना है जी, सही सही पहचाना है जी, सही सही पहचाना है। तो सहजता से हमारे बच्चे ना कर्मधारय समास भी समझ जाएंगे। क्या है जो कहाँ आएगा, रूपी कहाँ आएगा, और के समान कहाँ आएगा। इसमें बहुत ज्यादा गलतियां हैं, लेकिन नियम अगर हम याद रखें, विशेषण प्लस विशेष्य इज इक्वल टू है जो, उपमेय प्लस उपमान इज इक्वल टू रूपी, और उपमान प्लस उपमेय इज इक्वल टू के समान। तो ये एक सूत्र बन गया है ना। अगर फॉर्मूला बना के बच्चे को हम समझा देंगे, थोड़ा सा उसके साथ बातचीत करेंगे, तो कहीं समझ में आएगा। अब देखिए हम समापन की ओर चल रहे हैं इस गीत के। इस गीत का समापन फिर आगे अवधारणा गीत। जिसका जिसकी जिसके जिनका जिनकी जिनके आते हैं, सभी शब्द बहुव्रीहि समास के बारे में बतलाते हैं। अन्य पद इसमें प्रधान ये उसी ओर ले जाते हैं, अपने पद का अन्य नाम ये सही सही बतलाते हैं। अंशु है माला जिसकी अर्थात सूर्य बहुव्रीहि बने, घट समान आनन है जिसका श्री गणेश बहुव्रीहि बने। केवल जिसका जिसकी आए तब भी बहुव्रीहि मानेंगे, विग्रह के इस अंतिम पद से हम इसको पहचानेंगे। त्रिनेत्र शिव चक्रधर विष्णु, श्वेतांबरा मां शारद है, ऐसे समस्त पदों को जानो यह गागर में सागर है। वंशीधर मुरलीधर गिरधर नाम बताएं अब उनके, नाम षडानन नाम गजानन नाम चतुर्भुज हैं किनके। चंद्रमुखी मृगनयनी सुमुखी में भी बहुरी बस जाता, जिसका जिसकी से समास ये समझ सरलता से आता। यह सामासिक कविता हमको हर समास समझाएगी, यह सामासिक कविता हमको हर समास समझाएगी। देखें इस पर आप सभी की कितनी ताली आएगी जी, कितनी ताली आएगी जी, कितनी ताली आएगी। अब बताएं। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आप सबका हृदय से आभार। आप सबकी शुभकामनाओं से मैं अभिभूत हूँ। आपको पसंद आता है, मुझे अच्छा लगता है। इस गीत को शेयर करेंगे हम आपके साथ। बीच में किसी बहन ने कहा कि ये शेयर कर देना, तो शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप तन्मयता के साथ सुन रहे हैं, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है ना। वास्तव में आप की शुभकामनाएं वास्तव में ये संध्या बना देती हैं, है ना। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैं बार बार निवेदन यही कर रहा हूं कि हमने जो भी गीत के माध्यम से आत्मसात किया या कागज पर उतरा, तो उसको हमें ना कहीं फिर बच्चों के साथ श्याम पट पर कक्षा में संवाद हमें जरूर करना है। अगर हम संवाद कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे अवधारणा समझ जाएंगे। तो देखिए यहां पर वही प्रयास है कि हर जो गीत में आया उसको हमने यहां पर कहीं रूप देने का प्रयास किया। देखिए द्वंद्व जोड़ा समझा दिया, द्विगु को इस प्रकार समझाया, कर्मधारय आपने देखा बोर्ड, इस प्रकार हमने समझाया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अभी ऐसा करेंगे आज, एक 10वीं का, नवी 10वीं का, एक छोटे बच्चों का, ऐसे करके चलते हैं, है ना, तो अच्छा लगेगा। अब देखिए क्रिया विशेषण 6, 7, 8 के जितने जितने भी भाई बहन 6, 7, 8 में पढ़ा रहे हैं, वो आप यहां देखें। बहन यही ट्यून है मनीषा बहन। क्रिया इन शब्दों को भाती ये क्रिया को भाते, जुड़ क्रिया से ये क्रिया की खूबी बहुत खूब बताते। तो 2 लाइन मैं पढ़ता हूं, 2 लाइन आप पढ़िए, प्रयोग करें। जी जी सर, जी सर, जी जी। हाँ, देखिए 6ठी 7वीं 8वीं
में हम क्रिया विशेषण पढ़ाते हैं, कैसे सिखाया जाए, क्या सरल युक्ति हो, कैसे कब कहाँ कितना से हमारे बच्चे समझ जाएं सब कुछ, है ना। तो कैसे हम वो करें, देखिए, क्रिया इन शब्दों को भाती ये क्रिया को भाते, जुड़ क्रिया से ये क्रिया की खूबी बखूब बताते। कैसे आगे जी मनीषा रीति बहन। याद हो अब से चिन्हित काल, बात सरल सी है यह बच्चों इसको रखो संभाल। हाँ, तो कैसे से जी, बहन ने बहुत अच्छा पढ़ा। कैसे से जी रीति याद हो, अगर कैसे से उत्तर मिल रहा है तो रीतिवाचक है। अगर हमने कहा हम तन्मयता के साथ सुन रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं, तन्मयता के साथ, तो तन्मयता के साथ क्या है, तन्मयता पूर्वक सुन रहे हैं, तो तन्मयता पूर्वक क्या है ना, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ध्यान पूर्वक, है ना, जल्दी जल्दी, तेज तेज, धीरे धीरे, ये सब रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो कैसे से जी रीति याद हो कब से चिन्हित काल, और कब अगर आ जाए, मान लीजिए हम कहें आ, दादाजी प्रतिदिन अखबार पढ़ते हैं, तो कब पढ़ते हैं, प्रतिदिन, तो कब से चिन्हित काल, तो कब से उत्तर मिलके अगर कोई उत्तर आ रहा है तो वह काल को बताएगा। और अब आगे देखते हैं, कहां से जी स्थान याद हो कितना से परिमाण, क्रिया विशेषण की यह बच्चों सही सरल पहचान, क्रिया विशेषण की यह बच्चों सही सरल पहचान। जी बहन। जल्दी जल्दी तेज तेज और झटपट रीति बताते, कैसे से बस प्रश्न करो ये एकदम आगे आते। बिल्कुल, कैसे से बस प्रश्न करो ये एकदम आगे आते हुए, वह जल्दी जल्दी घर पहुंचा, कैसे घर पहुंचा, जल्दी जल्दी, है ना। तो ये आज अभी कल कभी निरंतर काल बताया करते, आज अभी कल कभी निरंतर काल बताया करते, कहीं छिपे हों पर कब कहते ही मिल जाया करते, कहीं छिपे हों पर कब कहते ही मिल जाया करते। तो ये मिलेंगे तो आप पहचान जाएंगे कि ये कालवाचक हैं। जी बहन। दाएं बाएं आगे पीछे कहाँ से मिल जाते हैं, यत्र तत्र सर्वत्र सभी स्थान को ही भाते, यत्र तत्र बहुत सुंदर। सर्वत्र सभी स्थान को ही भाते। तो दाएं बाएं आगे पीछे कहां से मिल जाते हैं, अगर हमने कहा वह आगे देख रहा है, कहां देख रहा है, तो आगे, तो हमारा कौन सा क्रिया विशेषण बन गया, स्थानवाचक, है ना। और पूर्णतया कम ज्यादा थोड़ा कुछ कितना से जाने, इन शब्दों से प्यारे बच्चों परिमाण पहचाने, परिमाण पहचाने, परिमाण पहचाने। तो अगर आ गया वह थोड़ा हंसा, कितना हंसा, थोड़ा, उसने कम खाया, कितना खाया, कम, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो गया। तो अब सरल युक्ति हो गई। तो कैसे, कब, कहाँ, कितना, तो कैसे से रीतिवाचक, है ना, कब से काल, कहां से स्थान, और कितना से वो परिमाणवाचक हो जाएगा। तो आपको अच्छा लगा। यह गीत था आपकी अपनी पुस्तक सार्थक हिंदी व्याकरण कक्षा 8 से, है ना। तो आप देखिएगा, पहले कक्षा 8 को भी हम थोड़ा थोड़ा लेके चलते हैं, है ना, और छोटे बच्चों को भी लेके चलते हैं, फिर वहां पहुंच जाएंगे। अब एक और गीत छोटे बच्चों का देखिएगा। अब लौड़ हमें अंतर सिखाना है, कैसे सिखाएं, इस गीत को मैं पहले भी सिखा चुका हूं, आप देखिएगा। आज मिले जुला, एक छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल, तो ऐसे करके मिला जुला आज हम करते हुए चल रहे हैं। और अब देखिए, छोटे बच्चों को, सेकंड के बच्चों को या थर्ड के बच्चों को हमें संज्ञा पढ़ानी है। कैसे पढ़ाएं, उसकी युक्ति है। अगर हमने उस समय उनको पाठ के रूप में पढ़ाने का प्रयास किया ना, तो कहीं ना कहीं अवधारणा नहीं पहुंचेगी और नीरसता बढ़ जाएगी, बच्चा अरुचि ले आएगा, पाठ से नहीं पढ़ेगा। हमने कहा बेटा आज ना हम क्या पढ़ेंगे, नाम वाले शब्द, है ना, और गा के पढ़ेंगे बेटा, है ना, उसके बाद देखेंगे किताब को, है ना। तो पढ़ते हैं। अब हम कह रहे हैं, शालू शोभा श्याम जी, सेब संतरा आम जी, हरियाली खुशहाली जी, पेड़ तना और डाली जी, बरगद नीम बबूल जी, बगिया पौधे फूल जी। बहन अब अगली स्लाइड आपके लिए। जी। गेंदा कमल कनेर जी, हाथी भालू शेर जी, बस्ता पेन किताब जी, जूता और जुराब जी, शिमला नैनीताल जी, तिब्बत या नेपाल जी, नाम सभी है जान लिया, संज्ञा को पहचान लिया, संज्ञा को पहचान लिया। बहुत ही सुंदर। एक बार आप चैट बॉक्स में आ जाएं, और मनीषा बहन के लिए भी ताली होनी चाहिए। आप एक बार ताली बजा दें, बहुत प्यारा साथ दे रहे, है ना। तो आपको कैसा लगा, है ना। बहुत अच्छा, देखिए मनीषा बहन आपके लिए ताली आ रही है ना। आपने धन्यवाद बहुत प्यारा, धन्यवाद धन्यवाद। कलाम सर।
आगे बढ़ते हैं। अच्छा लगा आपको गीत? ये गीत अच्छा लगा? ऐसे ही देखिए, छोटे बच्चों, चाहे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हो, चाहे हम 6, 7, 8 में पढ़ा रहे हो, चाहे हम जो 9वीं 10वीं में पढ़ा रहे हो, कहीं ना कहीं अगर सरसता है तो अवधारणाएं आत्मसात हो जाएंगी। आप एक और गीत देखिएगा, ये चल रहा है, देखिएगा। नामों का जो नाम है, सर्वनाम श्रीमान है। मैं हम वह वे आप तुम, चकई की चक धुम तक तक धुम। कोई कुछ जो सो जिसका, यह ये क्या किसने किसका, यह ये क्या किसने किनका, उसने उन्होंने उन्हें उन्हें, कौन स्वयं खुद किसे किन्हें, कौन स्वयं खुद किसे किन्हें। अब आगे बहन। इन शब्दों को पहचाने, सर्वनाम बच्चों माने, संज्ञा बार बार आए, भाषा सहज न हो पाए, सर्वनाम तब लिख देना, बदले में उत्तम लेना, बदले में उत्तम लेना। बहुत सुंदर। तो देखिए, सब कुछ इसमें आ गया। बच्चे से हम पूछ रहे हैं, बेटा ये नाम के बदले नाम वाले शब्द क्या कार्य करते हैं, भाषा के लिए इनकी क्या उपयोगिता है बेटा। हम छोटे बच्चों से संवाद कर रहे हैं, क्यों, कैसे भाषा को सहज करेंगे बेटा। अगर हमने ऐसे लिखा, हमने लिखा टॉमी, हमारा हमारे पालतू कुत्ते का नाम टॉमी है ना। टॉमी दूध और ब्रेड खाता है। टॉमी हमारे साथ टहलने भी जाता है। हमने बार बार टॉमी लाया, है ना। तो कहीं कुछ असहजता जैसी हो रही है ना। तो अब अगर हम टॉमी की जगह इन शब्दों को रख दें तो क्या होगा, है ना, तो सहज हो जाएगा। तो बच्चों के साथ संवाद करते समय उसी स्तर पर आए, उसी मानसिक स्तर का ध्यान रखें जिस मानसिक स्तर को हम पढ़ा रहे हैं, है ना। तो सहज हो जाएगा। तो देखिए, सर्वनाम आ जाएगा, बच्चों को संज्ञा आ जाएगी, बच्चे खेलना सीखेंगे। हाँ, ये नाम वाले शब्द हैं, ये नाम के बदले नाम वाले शब्द हैं, ये काम वाले शब्द हैं, क्रियात्मक शब्द हैं, है ना। तो ऐसे करके, तो छोटे बच्चों को अगर हम पढ़ा रहे हो, वहां उसी स्तर के गीत हमारे होने चाहिए। अब देखिए, फिर से हम चलते हैं इसकी ओर। एक गीत ये देखिएगा। अब देखिए, पदबंध पर आधारित गीत देखिएगा। अब 10वीं पर आ रहे हैं हम। पदबंधित पद समूह वही जो सदा वाक्य में आकर, रूप विकारी और अविकारी खुश होता है पाकर। अंतिम पद गर संज्ञा हो पदबंध वह संज्ञा जाने, अंतिम पद गर सर्वनाम तो सर्वनाम ही माने। इन दोनों से पहले पद सब खूबी बतलाते हैं, ऐसे ही पद समूह विशेषण से जाने जाते हैं। वाक्य अंत में क्रियापदों का एक साथ आ जाना, पदबंधों में सरल बहुत क्रिया पदबंध बताना। तो सब कुछ आया इसमें। हमने कहा अगर शीर्ष पद संज्ञा है, मान लीजिए मैंने कहा मेरे घर के सामने खड़ा पेड़ छायादार है, मेरे घर के सामने खड़ा पेड़ तक आया, शीर्ष पद पेड़ है, और उत्तर भी मिल रहा है मुझे, हम कह रहे हैं कैसा पेड़, तो मैंने कहा मेरे घर के सामने खड़ा, है ना। तो ऐसे करके उत्तर भी मिल रहा है। तो अगर संज्ञा शीर्ष पद है तो संज्ञा पद बन, सर्वनाम शीर्ष पद है, मान लीजिए मैं कहूं कि गुलाब की तरह मुस्कुराने वाले आप आज उदास क्यों हैं, तो गुलाब की तरह मुस्कुराने वाले आप तक आया, आप शीर्ष पद हो गया सर्वनाम। इन दोनों से पूर्व का हिस्सा हर स्थिति में अगर एक पद नहीं है तो विशेषण पदबंध बन जाएगा। लास्ट में क्रिया होती है, अगर दो क्रियापद हैं या दो से अधिक हैं तो क्रियापद बंद। तो देखिए, सहजता के साथ बच्चे अवधारणा सीख रहे हैं काव्य में, व्याकरण के रंग काव्य के संग। क्रियाओं की देख खूबियां क्रिया विशेषण जाने, तेज तेज जल्दी जल्दी सब खुश होकर पहचाने। पढ़ते हुए कहें या पढ़कर कर औरते क्या कहते, गिरते पढ़ते कूद फांद कर ये सब हैं खुश रहते। की अपेक्षा के साथ तक ये अव्यय भी आते, सात पदों के ये अव्यय अव्यय पदबंध कहाते। क्रिया विशेषण या फिर अव्यय एक बात ही होती, साथ गीत के हम चुनते हैं पदबंधों के मोती। क्योंकि बोर्ड की शब्दावली अगर क्रिया विशेषण पदबंध है तो हम कई बार अव्यय पदबंध को भी हम क्रिया विशेषण पदबंध के रूप में लिखते हैं, क्योंकि पांच ही भेद मानते हैं, है ना। तो हमने वो भी बता दिया, गलती अब ना होगी ये सब हमने पहचाने हैं। अब हवा पदबंध नहीं नंबर पूरे लाने हैं, नंबर पूरे लाने हैं, नंबर पूरे लाने हैं। तो यह गीत भी आपकी अपनी पुस्तक सार्थक हिंदी व्याकरण कक्षा 9-10 से साभार है
है ना। लिया आप देखेंगे, आप देखिए इस पुस्तक में बहुत सारे प्रयोग आपको देखने के लिए इस प्रकार के मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक उद्देश्य और एक विधेय संग वाक्य सरल कहलाता है। एक मुख्य क्रिया बस देखो यह पहचाना जाता है। धातु रूप में ते ही ने से ने पर कर इसमें आते। जोड़ स्नेह के सरल भाव से सरल वाक्य को है भाते। कर्ता देखा क्रिया देख ली सरल सरलता से आया। इसे समझने में थोड़ा भी सिर अपना न चकराया। तो वाक्य की संख्या एक, और कई बार बीच में ते ही ने से ने पर, मान लीजिए मैं कहूं वर्षा होते ही मौसम सुहावना हो गया, हड़ताल होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, है ना। तो इस प्रकार के प्रयोग इसमें होते हैं। एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है, एक मुख्य क्रिया दिखाई देती है, तो कहीं चकराना नहीं है इसमें। और अतः लेकिन अथवा या ना तो ना ही या तो या और बल्कि भी संयुक्त वाक्य में अब इसमें संदेह है क्या। वाक्य जोड़ते जब ये योजक संयुक्त वाक्य तब हो जाता। अगर लोप भी हो इनका तो संयुक्त वाक्य ही कहलाता। जबकि यदि सिंह है मिश्र वाक्य इसकी पहचान सरल होती। अब जकी यदि सूत्र है, अब हम कह रहे हैं जकी यदि सूत्र का परिचय दिया, काव्य में भी दे दिया और वैसे भी बता दिया। हमने कहा बेटा जकी यदि सूत्र, जो जिसे जिसने जिन्होंने जिसका जिसकी जैसे ही ज्यों ही जब जब जहां जहां है, की क्योंकि ताकि यदि अगर यद्यपि तथापि, तो सब कुछ आ गया, है ना। जो जिसने जिसको जिससे जिसकी जिस पर जिसमें आए। जब जब जहां जहां जैसे ही ज्यों ही में जो मुस्काए। कि क्योंकि ताकि से भी यह मिश्रित पहचाना जाता। और यदि तो यद्यपि आए तब भी मिश्र वाक्य है कहलाता जी, मिश्र वाक्य है कहलाता जी, मिश्र वाक्य है कहलाता। मनीषा बहन आप बताइए बहन, इन गीतों को, इन गीतों से मतलब हम अवधारणा आत्मसात करवाने के लिए कह रहे हैं, तो क्या सहज हो जाएगा, बिल्कुल अवधारणा सर। आत्मसात हो। जी। बिल्कुल सहज हो जाएगी सर, जबानी याद हो जाएगा बच्चों के लिए, और बोर्ड में तो आराम से बच्चे कर लेंगे। बहुत ही बेहतर बिल्कुल, प्रयोग है सर। क्योंकि सरल युक्तियां मैंने इसमें इसके अंदर हैं। क्योंकि जकी यदि अगर हमने कह दिया तो बच्चा जकी यदि याद रखेगा, गीत पूरा याद नहीं होगा, गीत सुनने का आनंद लेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं हम उसको काव्य का भी रसास्वादन करवा रहे हैं, काव्य में हम व्याकरण पढ़ा रहे हैं और उसके बाद उसको सिखा दिया बोर्ड पर, तो कहीं ना कहीं अवधारणाएं बिल्कुल आत्मसात हो जाएंगे। एक बार सभी भाई बहनों से जुड़ता हूं, एक बार बताएं क्या गीत अच्छा लगा, तीनों गीत अच्छे लगे। ये बहुत अच्छी सी एक टिप्पणी आई है लेकिन नाम नहीं लिखा हुआ है, जूम लिखा हुआ व्याकरण के रंग काव्य के संग रजनी। बहुत ही बहुत आभार, आपका नाम नहीं आ रहा, लेकिन आपकी टिप्पणी मुझे बहुत पसंद आई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका हृदय से आभार। अच्छा मिलिंद जी जुड़े हुए हैं, जी बहुत बहुत धन्यवाद मिलिंद जी। जी जी, बहुत बहुत जूम धन्यवाद यूजर मिलिंद जी, जी है सर जी। आपकी उपस्थिति गौरवान्वित कर रही है जी। बहुत सुंदर, आगे बढ़ते हैं। बीच बीच में आपके साथ संवाद हो जाता है तो अच्छा लगता है ना। लगता है जैसे जो ऑफलाइन कार्यशाला वो चल रही हो, ऐसा लगता है, ऑनलाइन भी जीवंत लगता है। जीवंत हो वापस जाती है कार्यशाला हाँ एकदम। बिल्कुल 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 जी आप। जी जी। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एक दो गीत और सुनाता हूं आपको। अब बात यह है, आज की कार्यशाला हमने इसीलिए इसको हमने काव्य में पिरो के प्रस्तुत किया, और टॉपिक भी इस प्रकार का रखा कि व्याकरण के रंग काव्य के संग, कि यहाँ पूरा व्याकरण तो संभव नहीं है गीत उसमें, लेकिन अगर कुछ सुना दिया गया तो हम कहीं ना कहीं एक दूसरे से प्रेरित होते हैं। और आपके प्रयास भी वास्तव में बहुत प्रशंसनीय प्रयास सामने आते हैं। मैंने देखा है आपके अक्सर अवधारणा गीत मेरे पास आते हैं और वो लिखे हुए मुझे बेहद पसंद आते हैं। तो कहीं ना कहीं हम रचते रहें अवधारणा गीत, हम सरल युक्तियां बनाते रहें, तो और उसको एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं बांटते रहें, तो उससे क्या होगा, उससे सहज हो जाएगा, हिंदी अध्यापन सहज होगा, हिंदी के प्रति बच्चों की रुचि जागृत होगी। तो कहीं ना कहीं हमें यह कार्य करते रहना है। तो आज इस कार्यशाला से हमें एक प्रेरणा लेकर हम सबको, हमें यह करना है, एक संकल्प लेना है कि हाँ हम अवधारणाएं सिखाने के लिए, अवधारणाएं आत्मसात करवाने के लिए कुछ ना कुछ प्रयोग जरूर करेंगे। चाहे वो काव्य के प्रयोग हों, चाहे वे सहज युक्तियों के प्रयोग हों, हमें करना जरूर है। और एक बार जब आप कर लें तो मेरे पास जरूर मेरे पर्सनल नंबर पे भी भेजिएगा और ग्रुप में भी भेजिएगा, है ना। तो बहुत अच्छा लगेगा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा।
अब देखिएगा, ड़ और ढ का अंतर अगर हमें सिखाना है तो हम कैसे सिखाएं? बहन आप पढ़ेंगी? जी सर। जी। जी। कौन सा उसी ताल में पढ़े सर, कि सिंपल पढ़ना है कैसे? सर म्यूट है आप। ऐसे ड़ व ढ वर्णों में बच्चों अच्छा। अंतर क्या है जाने हम। ये जी। दोनों है जुड़वा से पर कुछ अंतर पहचाने हम। किसी शब्द में सबसे पहले कभी नहीं आते हैं ये, बाकी किसी जगह भी आकर झट घुल मिल जाते हैं ये। दांत से ऊपर मुंह का हिस्सा ड़ को, इससे प्यार है जी। मुंह की छत पर ढ का अपना पूरा ही अधिकार है जी। मुंह की छत पर ढ का अपना पूरा ही अधिकार है जी। बादल गड़गड़ बिजली कड़कड़ गड़गड़ कड़कड़ शोर हुआ। सोचोड़ बोलो बोल रहे थे, इसने मुंह किस जगह छुआ। चढ़े चढ़ाई चढ़े पढ़े चढ़ाई पढ़े पढ़ाई, पढ़ाई पढ़ाई चढ़े कड़ी, बनेगी चढ़ी कढ़ाई। चढ़ी जी। चढ़ी कढ़ाई ढ में जीभ खेलती देखो। मुंह की छत संग छुअम छुआई, कड़वा बहुत काढ़ा सुंदर। काढ़ा कड़वा कड़वा काढ़ा कौन पिए। ऐसा कह के देखो बच्चों ड़ ढ दोनों सीख लिए, ड़ ढ बहुत ही दोनों सुंदर। सीख लिए। तो देखिए बहुत सुंदर गाया मैंने। और वास्तव में इसमें अवधारणा है, बच्चे टंग ट्विस्टर है ना। जैसे हम कहें बादल गड़गड़ बिजली कड़कड़ गड़गड़ कड़कड़ शोर हुआ, सोचो जबड़ बोल रहे थे, इसने मुंह किस जगह छुआ। तो टंग ट्विस्टर के माध्यम से तरह तरह की गतिविधियां, जब हम अवधारणा गीत रच रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारी युक्तियां आए, कहीं सरल युक्तियां उसके अंदर समाहित हो जाएं, है ना। कहीं शास्त्रीय जो जानकारी है, समस्त शास्त्रीय जानकारी बिल्कुल व्यावहारिक शब्दावली में पिरो के उनके सामने रखी जाए, है ना। तो बच्चा सीखता है आगे। देखिएगा, अब मैं समापन की ओर बढ़ूंगा। एक चीज और आपको मैं सुनाता हूं। देखिए, आज हम कैसे की और की में अंतर सिखाएं, नए गीत हैं बिल्कुल। आप देखिएगा कैसे हम सिखाएं, और क्या इसमें वो जो बहुत तेज गति से हम इसको गा सकते हैं, है ना। तो कैसे करेंगे इसको देखिएगा। बाबा की घड़ी है, अम्मा की छड़ी है। तो देखिए, नाम के बाद की और काम के बाद की, यानी काम वाले एक्शन वर्ड्स के बाद में आपको की लगानी है। और इसमें ज्यादातर नाम वाले शब्द हैं, नेमिंग वर्ड्स हैं। तो नेमिंग वर्ड्स के बाद हम कैसे लगाएंगे, देखिए। बाबा की घड़ी है, अम्मा की छड़ी है, राधा की गुड़िया है, आफत की पुड़िया है, फसलों की कटाई है, पत्तों की चटाई है, भोलू जी की मौज है, संग पूरी फौज है, सपनों की उड़ान है, दादा की दुकान है, फूलों की मुस्कान है, बगिया की शान है, अच्छी तरह देख लो की के पहले नाम है, बाद नाम के आना ही इसकी पहचान है, इसकी पहचान है, इसकी पहचान है। तो रैप स्टाइल हो गया, है ना। तो अब ये देखें, आगे बढ़ेगा। उन्होंने पढ़ाई की, तुमने लड़ाई की, उसने शिकायत की, हमने हिफाजत की, क्रिया के रूप में भी की देखो आती है, इसकी जगह करी भाषा को न भाती है, खाने की, गाने की, पढ़ने की, चढ़ने की, डरने की, करने की, सोने की, खोने की, इनमें भी की है, अच्छी तरह जान लो, रूप इसका यह सही पहचान लो, रूप इसका यह सही पहचान लो। तो जब आप लिखने बैठेंगे, अगर गीत की ये पंक्ति याद आ गई, बहुत अधिक खाने की आदत अच्छी नहीं होती, खाने की आया तो कौ पे बड़ी की मात्रा लगाएंगे, है ना। तो इस प्रकार प्रयोग हैं। अब देखिए, इसमें की बहेगी, कौ पे छोटी की मात्रा बहती हुई चलेगी। आप देखिएगा, अभी की बह के आई, अब की बहती हुई जा रही है, देखिए कैसे। घड़ी कहा करती है कि आलस से न तिल भर करना है, झरना यह सिखलाता कि ना चट्टानों से डरना है, नदी कहा करती है कि नित बढ़ते जाओ रुको नहीं, गर्वित पर्वत कहता कि तूफान के आगे झुको नहीं, पेड़ सदा सिखलाते हैं कि परहित भाव लिए चलना, नन्हा दीपक कहता कि अंधड़ अंधियारों में जलना, हवा सुबह की सिखलाती कि तन मन ताजा ताजा हो, फूल सिखाते कि मन खिलती मुस्कानों का राजा हो, मुस्कानों का राजा हो। जी बहन, मनीषा बहन। जी सर। जी। नव सिखलाता,
अच्छा, नभ सिखलाता है कि यश में कद अपना ऊंचा कर लो, धरती सीख यही देती कि मन में धैर्य बहुत भर लो। यह कह दो कि गुण ये सारे गुण ये जीवन सारे। में अपनाएंगे, और भरोसा कर खुद पर यह कहो कि सब कुछ पाएंगे। इस कविता ने बतलाया कि कहाँ सदा की आती है, कहाँ बताया क्रिया आदि के बाद लगाई जाती है। जैसा कि में भी आता है, यह भी थोड़ा ध्यान रहे, कि को नहीं भूलना है अब याद सदा पहचान रहे। खेल खेल में की पहचानी, सही सही सब जाना है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा गीत हमें यह गाना है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा गीत हमें यह गाना है। गीत में यह गाना है। बहुत सुंदर सुंदर बहन। तो देखा, आपने देखा कि कैसे की बहती हुई चली आई। सरल सूत्र है। जैसे कि हम कहें कि नाम के बाद की और काम के बाद की, इसको भी हम गा के करते हैं छोटे बच्चों के साथ, है तो इतना बड़ा गीत नहीं सुनाएंगे, तो वहां हम कहेंगे नाम के बाद की, काम के बाद की, नाम के बदले नाम अगर हो तब भी आता की, और करी न कहना वाक्य अंत में खूब लुभाता की। जी, खूब लुभाता की। तो जिस कक्षा में हम पढ़ा रहे हैं, उन बच्चों के मानसिक स्तर के अनुकूल अगर हमारे अवधारणा गीत आकार लेते हैं, तो बच्चा सहजता के साथ का इसमें रुचि लेता है और उसको अच्छा लगता है। आप सबको कैसा लग रहा है? अब ये छोटे बच्चों के जो गीत आए वो आपको कैसे लगे, एक बार बताएं। बहुत ही सुंदर, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। कारक आदि का गीत, कारक क्रिया, इनके अगली बार आपको जरूर सुनवाएंगे। पुस्तक में है लेकिन आज पीपीटी में नहीं है वो गीत, क्योंकि यही सोचा था कि बहुत अधिक आपका समय भी ना लिया जाए और एक अच्छा वो हो जाए। तो कारक पर आपको गीत, कारक पर गीत मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप पर। कारक गीत है, उसको मैं शेयर करूंगा आपके साथ। अब देखिए, कहां पर हम इसी के साथ हम लगभग समापन की ओर बढ़ रहे हैं, कि कैसे हम नुक्ते की पहचान कैसे करवाएं और जहां नहीं नुक्ता आता उसको हम कैसे बताएं। तो इसको एक बार आप सुनिएगा। मौजूदा मजबूर हजामत वजह मौज जागीर इलाज, और ज्यादातर जगह मौज को मौज लिखा जाता है, ज्यादातर जगह वजह को वजह हो जाता है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, जहां नुक्ता नहीं लगना है वहां ना लगाएं। तो बच्चे को कैसे हम बताएं कि ये जो ध्वन्यात्मक अवधारणा है उसको हम कैसे सही करवाएं। तो देखिएगा इसको, मौजूदा मजबूर हजामत वजह मौज जागीर इलाज, उर्दू के ये शब्द हैं लेकिन नुक्ते का ना इन पर राज, और जश्न जुआरी जुर्माना फिर फिसल जवाबी मजबूरी, ये सारे अल्फाज रखा करते हैं नुक्ते से दूरी, बावजूद फांसी जुर्माना फंदा फंसना और जवाब, लफ्ज हैं ऐसे नुक्ते से जी इनको रखना दूर जनाब, जन्नत हज हाजी जहान जुनू जायदाद जाहिली कहें, भूले से भी लफ्ज ये सारे नुक्ते के ना साथ रहें, फूल ताज नौजवां तजुर्बा फूलदान या फांद कहें, सभी शब्द ये भूले से भी नुक्ते के ना साथ रहें, गलत लगाकर नुक्ता इनमें उच्चारण मत बिगड़ाना, और सही बोलकर प्यारे बच्चों भाषा अपनी महकाना जी, भाषा अपनी महकाना जी, भाषा अपनी महकाना। तो जितने शब्द, अधिकतम शब्द इसमें लिए गए जो प्रचलित हैं, जैसे फूलदान कहा, तजुर्बा कहा, नौजवान कहा, ताज कहा, फांसी कहा, फंदा कहा, है ना, वजह कहा, तो बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनमें इनमें नुक्ता नहीं आएगा। तो इनका हमें ध्यान से प्रयोग सिखाना है। अब देखिए आगे, जहां नुक्ता आता है उसको कैसे सिखाएं। नजर नजाकत जोर इजाजत
इज्जत और इजाफा जी, नजर नजाकत जोर इजाजत इज्जत और इजाफा जी, बिन नुक्ते के शब्द ये सारे बोले जाते नहीं कभी। अब ये टंग ट्विस्टर भी है, सारे शब्द उसके हैं। अब जब हम कह रहे हैं मंजूरी मंजिल अजीज फौरन फसलें जिम्मेदारी, तो मंजूरी मंजिल अजीज फौरन फसलें जिम्मेदारी, नुक्ते के संग इन सब की ही होती है पक्की यारी, तेज जरूरी फर्ज फालतू फर्जी काफी तूफानी, बिन नुक्ते ना बोले इनको बात यही है समझानी, बात यही है समझानी, बर्फी बर्फीली कमीज कमजोरी सिर्फ जरा जीनत, बिन नुक्ते के कभी अकेले इन शब्दों को छोड़ो मत, राज जिंदगी जरा शराफत रोजगार रोजाना जी। और एक प्यारी सी पंक्ति देखिएगा, राज जिंदगी जरा शराफत रोजगार रोजाना जी, गुड़ की एक डली सा इनको मुंह में बस चुभलाना जी, मुंह में बस चुभलाना जी। ये भाषा इसी प्रकार आती है, ध्वन्यात्मक हमें ज्ञान इसी प्रकार आता है। हम जब तक उसको बोलेंगे नहीं लगातार, तब तक आएगा नहीं। तो हमें इसको सीखना पड़ेगा। अब तो बच्चों को भी हम प्रेरित कर रहे हैं, बेटा बोल के देखें इनको, है ना। तो गुड़ की एक डली सा इनको मुंह में बस चुभलाना जी, सही बोलना आ जाएगा उच्चारण खिल जाएगा, भाषा भी आनंदित होगी, मन कितना मुस्काएगा जी, मन कितना मुस्काएगा जी, मन कितना मुस्काएगा। कैसा लगा आपको ये गीत? एक बार आ जाए, चैट बॉक्स में आ जाए। बहुत तेजी के साथ निकल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा बहन की सुंदर सी टिप्पणी, बहुत बहुत धन्यवाद बहन। मिलिंद जी जुड़े हुए हैं लगातार, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वाति बहन की सुंदर सी टिप्पणी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब सक्रिय भागीदारी निभाते हैं ना, तो मन गदगद हो जाता है। वास्तव में आप तन्मयता के साथ सुनते हैं, मैं आभारी हूं आपका, अभिभूत हूं। बस एक गीत और सुना के आप समापन करेंगे कार्यशाला का। देखिए, बात चल रही थी टंग ट्विस्टर की, बात चल रही थी ध्वन्यात्मक जागरूकता की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया ध्वन्यात्मक जागरूकता, है ना, एनसीएफ में कहा गया ध्वन्यात्मक जागरूकता की बात कही गई। तो ध्वन्यात्मक जागरूकता आएगी कैसे, कैसे वो बोलना सीखेंगे सही? तो लयात्मक नवाचार के माध्यम से कला समेकन गायन आ जाएगा इसमें, और अनुभवात्मक अधिगम भी है। वो कुछ कुछ ना कुछ वो इस प्रकार के शब्द सीख कर आए, कहीं से लेकर आए, अगर हमने ऐसा प्रयोग कर दिया। तो इस गीत के साथ हम आज की कार्यशाला का समापन करेंगे, एक बार सुनिएगा, देखिएगा। री की पाती है, गीत का नाम है री की पाती। री ने पाती भेजी कैसे? अगर पांचवी के बच्चे को इस गीत को भेज दिया जाए और कहा बेटा एक बार इसको गाएंगे, क्लास में गाएंगे, और बाकी ये शब्द लिख लाएं आप बस, तो उसको मात्रा आ जाएगी। और गलत नहीं लिखेगा। क्यों? क्योंकि उसके कहीं ना कहीं उस आत्मसात कर लेगा उस अवधारणा को। अगर वृक्ष लिखना होगा उसको याद आएगा, है ना, तो वृक्ष उसको वो कर लेगा। देखिए जी कैसे, ऋतु ऋण ऋत्विक ऋषि ऋजु बोलो, बोल बोल जरा इनको तोलो, ऋतु ऋण ऋत्विक ऋषि ऋजु बोलो, बोल बोल जरा इनको तोलो, नृत्य कृत्य गृह वृक्ष सृजन दृक्, कृति कृषि कृष्ण कृपाण मृदुल मृग। तो टंग ट्विस्टर है या नहीं है? एक बार बताएं, टंग ट्विस्टर आ रहा है? एक बार बताएं। भवनी बहन की सुंदर सी टिप्पणी जी। आ, एक और गीत गाना पड़ेगा क्योंकि कहा गया, तो मैं जरूर गाऊंगा उसको। उसमें ए आई आएगा। नृत्य कृत्य गृह वृक्ष सृजन दिग, कृति कृषि कृष्ण कृपाण मृदुल मृग, मातृ पितृ ऋचा ऋषभ मृदा घृत, सृष्टि दृष्टि नृप कृषक कृपावृत, आकृति पृथक पृथक पृथ्वी नृप, कृपया प्राकृत वृद्धि बृहद, कृपया प्राकृत वृद्धि वृहद सृप, री ने भेजी है यह पाती, पढ़कर पाती री आ जाती, देखो जीभ कहाँ टकराती, बस यह जानो बस यह जानो, बस यह जानो पढ़ लो पाती, बस यह जानो पढ़ लो पाती, बस यह जानो पढ़ लो पाती। तो आपने देखा कैसे
आ, री के इतने शब्द आए कि बच्चा अगर लिख लेगा, इस गीत को ही लिख लेगा ना, तो उसको री बिल्कुल अवधारणा स्पष्ट हो जाएगी। ध्वन्यात्मक बिल्कुल सही अवधारणा बोध होगा, ध्वन्यात्मक अवधारणा बोध। तो ऐसे प्रयास अगर हम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक बहन ने कहा है कि एक गीत के लिए कहा है, मैं उस गीत को सुना रहा हूं, आप देखिएगा। इसी के साथ समापन करेंगे, फिर किसी अगली कार्यशाला में आपको और सुनाऊंगा मैं। सर, लीना जी कह रहे कि गीत की किताब की अगर लिंक हो तो भेजिए कृपया, ऐसा बोल रहे गीत की हैं। किताब जल्द ही प्रकाशित होने वाली है। वैसे ये सार्थक हिंदी व्याकरण बुक है, न्यू सरस्वती हाउस प्रकाशन की। उसमें हमने ज्यादातर गीत दिए हैं, लेकिन अब मैं अलग से गीतों की किताब बनवाने वाला हूँ जिसमें सारे गीत हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, लिंग, है ना, वचन, सारे गीत हैं। तो उन गीतों को आकार मिल रहा है, और निश्चित रूप से आप तक वो पहुंचेंगे गीत। अ, आप देखेंगे जो वचन का, जैसे वचन है तो वचन को कैसे सिखाया जाए, तो वचन का भी एक गीत है, देखिए बहुत अच्छी तरह से इसमें आ जाता है। वचन है संख्या आओ जाने, एक अनेक चलो पहचाने, एक है तारा कई है तारे, एक गुब्बारा कई गुब्बारे, एक है ठेला कई है ठेले, एक है मेला कई है मेले, एक है पत्ती कई पत्तियां, एक है बत्ती कई बत्तियां, एक परी है कई है परियां, एक दरी है कई है दरियां, खेल खेल में गीत बढ़ाएं, ताक दिना दिन नाचे गाएं, ताक दिना दिन नाचे गाए। तो वचन वाले गीत भी हैं, सारे गीत व्याकरण के मां शारदा की कृपा से काफी गीत आकार ले गए हैं, आप तक जरूर पहुंचेंगे। आप जिस गीत के लिए भी कहेंगे आप तक गीत पहुंचेगा। जैसे कारक के लिए कहा, तो कारक का गीत मैं शेयर करूंगा आपके साथ में ग्रुप पर। अब आप देखिएगा, अ, ये मात्रा गीत है, और इसमें ज्यादातर जो अभी वो टिप्पणी आई कि ए आई कैसे पहचाने, हम कैसे, इस गीत को आप सुन लें। थोड़ा सा विलंब तो हो रहा है, लेकिन 5 मिनट का समय हम लेते हैं। अमात्रा के बिना खड़ा है आकी मात्रा डंडा, राजा बाजा सावन पावन सीधा इसका फंडा, ई बोली जाने पर देखो अल्प समय लेती है, देरी इसको एक पल की भी नहीं जरा भाती है। अब देखिए गीत के माध्यम से कैसे सिखाने का प्रयास किया, आप देखिएगा। कवि रवि गति मति का उच्चारण अल्प समय में करना, व्यक्ति शक्ति अनुरक्ति भक्ति में बस देरी से डरना। अगर जरा सा उच्चारण बिगड़ा तो कवि कवि में बदल जाएगा, जो गलत होगा। रवि रवि में बदल जाएगा, गलत होगा। देरी होने पर ई जैसा उच्चारण बन जाता, और कवि रवि में ढलकर गलत रूप है पाता, और आसानी से ई आती है नहीं कठिनता भाती, नानी लिखो लिखो कहानी पर गलती ना आती, और फूल धूल बोलो गर बच्चों होठ हैं आगे आते, चुनमुन सुन में होठ मगर झटपट वापस आ जाते। अब हम फूल बोल रहे हैं तो होठ आगे को निकलेंगे, फूल, होठ आगे को निकले। हमने कहा फुलवारी तो ऐसे आ गया। इसी प्रकार अगर हम कह रहे हैं चुनमुन, तो चुनमुन ऐसे करके होठ आ जा रहा है ना। तो ये होंठ अगर बाहर निकले हैं तो ऊ की मात्रा, और अगर झटपट वापस आ गए हैं तो छोटे ऊ की मात्रा। और री का गीत मैंने अभी सुनाया ही आपको। आगे, अब ए आई की बात आई थी मैसेज में। ए का रूप सरल होता है खेल खेलने जैसा, आई आने पर ही बनते हैं नैया और खिवैया, गड़बड़ ज्ञान अगर हो जाए मेल मैल बन जाए, पेड़ पेड़ या पैर पेड़ पर कितनी लज्जा आए। अगर पैर लिखना है पैर लिख दिया, मेल लिखना है मैल लिख दिया, तो ऐसे करके बच्चों को हम सहजता के साथ सिखा रहे हैं। ओ में होठ गोल हो जाते गोल बोल कर देखो गोल, तो होठों का आकार गोल हो रहा है ना। ओ से पक्की यारी होगी मुंह खोल कर देखो, सरल बहुत ही यह होता है करो न रोना धोना, मोहन सोहन रोहन रोली लिख दो सोना मोना। औ के उच्चारण में बच्चों थोड़ा मुंह फैलाना, बिल्कुल इतना जो धीरे से रसगुल्ले को खाना। और हिंदी में नौ मांग आते पंथ हो या पगडंडी, कोई सा भी वर्ग हो, क च ट त प, अगर हम देखेंगे तो 3 से 9 का उच्चारण आता है, मौ का उच्चारण और अंग का उच्चारण ऐसे करके आ रहा है ना। शास्त्रीय आधार पर हम वही रखेंगे, लेकिन जो उच्चारण अगर हमने कहा चंचल भी कहेंगे ना,
तो जबकि च वर्ग का है, पंचम वर्ण आपको पता है, लेकिन साउंड क्या पड़ेगी, नौ। चंचल, चन, तो नौ का पुट आ रहा है ना। इसी प्रकार अगर हम देखें तो अगर हमने कहा पंडित, ड, ट ठ ड ढ ण वाला, ट वर्ग वाला, तो उसमें भी नौ सुनाई देता है, पंडित, पन, नौ। तो तीन में नौ, और प वर्ग मौ, और जो क वर्ग है उसमें अंग सुनाई देता है। तो हिंदी में नौ अंग आते, पंथ हो या पगडंडी, लाओ चुकंदर पगडंडी से जाकर सब्जी मंडी, हवा नाक से बाहर आती जब बोलोगे बिंदी, चाहे सिंधी कहकर देखो या फिर कह लो हिंदी, चंद्र बिंदु के उच्चारण का ध्यान सदा ही रखना, और दंत दांत में हंस हंसी में अंतर खूब समझना, समझ आ गया अगर यह अंतर अब विसर्ग की बारी, प्रातः में खिल खिल जाती है अक्षर की फुलवारी, ऊपर नीचे दिखे बिंदु जो वे विसर्ग कहलाते, अतः और फलतः में दोनों हौ की तरह लुभाते, औज़ फौ हैं वर्ण विदेशी इनको दोस्त बनाओ, मॉल हॉल में जरा फोन कर इनका पता लगाओ, मात्राओं का खेल अगर यह तुमको आ जाएगा, लिखने में पढ़ने में बच्चों मन ना घबराएगा, भाषा जो तुमसे चाहती है वह गर उसको दोगे, बदले में उसकी ममता को अपनेपन को लोगे, मात्राएं कर याद मजे से जो चाहे सो पढ़ना, और पढ़कर लिख कर बच्चों तुम उन्नति का पर्वत चढ़ना, उन्नति का पर्वत चढ़ना, उन्नति का पर्वत चढ़ना। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने तन्मयता के साथ मुझे सुना है। मैं हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूं कि आप सुनते रहे, और वास्तव में सभी जुड़े रहे, मिलिंद जी और भी भाई बहन सब जुड़े रहे जी। बहुत सुंदर मधुराय बहन, प्रतिक्रियाएं आ रही है सर की। हाँ, रोहिणी बहुत बहन, सुंदर। जी मीनाक्षी जी। जी, सब जुड़े रहे। जी बहुत जी। तन्मयता से सुना, तो मैं अभिभूत हूँ। आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, और वास्तव में जिस दिन मैं आपके साथ जुड़ता हूँ ना, वास्तव में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ना। जी, जी। बहुत अच्छा, प्रभावशाली ज्ञानवर्धक। एक बार चैट बॉक्स में मैं देखना जी चाहता हूँ। जी जी। और बहुत सुंदर वास्तव में प्रतिक्रियाएं आ आ- रही है सर, बहुत ही आनंदित, सुंदर। आत्मा आनंदित है ना। जी जी, बिल्कुल। किताब का नाम है सार्थक हिंदी व्याकरण, अभी एक यहाँ पे पूछा, और न्यू सरस्वती हाउस प्रकाशन ने उसे प्रकाशित किया है, और 1 से लेके 10 तक उपलब्ध है। उसमें इस प्रकार के गीत दिए गए जी। हाँ, सलाम सर। कुछ मैसेज आए हैं इसमें चैट बॉक्स में कि हिंदी ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो कृपया उनको लिंक भेज देंगे, या जो भी प्रक्रिया Yeah, है। I can give जी my WhatsApp जी number, जी जी so they जी can text me. I will do the needful. जी 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 सर। WhatsApp number I posted in the chat box. या तो धन्यवाद विनोद सर। आपके द्वारा धन्यवाद। जो सत्र लिया गया वो अत्यंत प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक रहा। सभी ने आनंद उठाया और पता ही नहीं चला इतना समय कैसे निकल गया। तो आपने इस सत्र के माध्यम से ये सिद्ध कर दिया कि भाषा शिक्षण केवल नियमों का अभ्यास नहीं होता है, बल्कि रचनात्मकता के साथ भी उसका आनंद लिया जा सकता है ना। तो ये आपने आज सिद्ध कर दिया सर। कविता, खेल और गतिविधियों के माध्यम से व्याकरण को सरल, रोचक बनाया जा सकता है और बच्चों के लिए जीवंत बनाया जा सकता है, जिससे बच्चे उसमें पूरी तरह से घुल मिल जाए। तो इस सत्र से हमें प्रेरणा मिली कि व्याकरण को रटाया नहीं बल्कि अनुभव कराया जाए। मुझे विश्वास है कि इस सत्र से सभी अपने साथ ज्ञान के मोती बटोर कर ले जाएंगे और अपने बच्चों को इन ज्ञान के मोतियों का वितरण जरूर करेंगे। तो अब हम सत्र के अंत में कुछ प्रश्नोत्तर ले सकते हैं। तो माननीय जी जी। विनोद सर जी जो है अपने अ, तत्पर रहेंगे कि सबके जो भी समस्याएं हैं या प्रश्न है उनका हल बताएं। तो चैट बॉक्स में आप प्रश्न लिख सकते हैं अथवा रेज हैंड का बटन जो है वो आप प्रेस कर सकते हैं, तो आपके सवाल हम ले सकते हैं। मिलिंद जी हाँ आइए, जी, बताइए। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते सर जी, नमस्ते जी, नमस्ते मिलिंद नमस्ते जी, जी, कैसे हैं आप? सलाम, नमस्ते जी, नमस्ते जी, प्रसून जी, नमस्ते जी। आप नमस्ते। तो स्वयं लयात्मक नवाचार के प्रणेता है, हम क्या अरे कहें।
फिर नहीं भी नहीं जैसे आपसे प्रेरित होकर कुछ कहना चाहता हूँ, सुनिए। नहीं, आप बहुत प्यारा लिखते हैं, नहीं आप नहीं बहुत नहीं, प्यारा लिखते हैं। आप ही से प्रेरित हूँ, आप ही से अभिभूत हूँ। व्याकरण के रंग काव्य के संग, जब जी गूंजा मंच मधुर गान, विनोद जी जी ने नवपत रचा, ज्ञान बना सजीव प्रमाण। समास के सुंदर बंधन को तुक में बांधा लय के साथ, क्रिया विशेषण गा गा समझाया, हर्षित हुआ सारा पाठ। नुक्ते की बहुत भी बारीक बात, सरल बनी गीतों की रीति, की और की के अंतर को समझा सबने मधुर कृति। संज्ञा पदबंध के गुण तत्व, भाव भरे सुर में उतरे, विनोद जी को वंदन हमारा, नवाचार से दीप जले। हाँ, नवाचार से दीप जले। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। हार्दिक धन्यवाद मिलिंद जी, मैं अभिभूत हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत खूब मिलिंद सर, बहुत ही बहुत ही बेहतर, सुंदर, बहुत सुंदर। काव्य में पिरो दिया, वो विशेषता है मिलिंद जी की, जी और जी देखिए जी, काव्य में पिरो दिया पूरी कार्यशैली। बिल्कुल यस यस। बिल्कुल। और एक मीनाक्षी जी भी है। मीनाक्षी जी, नमस्ते सर। बोलिए। नमस्ते बहन, कैसी हैं आप? नमस्कार सर। सर मेरी एक क्वेरीज थी जी कि हम कहाँ पर महाशय का प्रयोग करेंगे और कहाँ पे महोदय का प्रयोग करेंगे, या दोनों क्या पर्यायवाची हैं? देखिए बस इतना इतना हैं बताने की बिल्कुल। कृपा करें। महाशय और महोदय एक मतलब दोनों समानार्थी हैं, लेकिन देखिए सूक्ष्म अंतर होता है, लेकिन हम प्रयोग कर सकते हैं, है ना। महा प्लस आशय से बना देख- और महा प्लस उदय से बना हुआ है, तो हम दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों संधि शब्द हैं और दोनों लगभग समान अर्थ में ही प्रयोग किए जाते हैं। अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि किसी ने लेकिन जैसे देखिए आवेदन औपचारिक पत्र लिखा है नहीं, ना। हाँ नहीं, औपचारिक में वही मैं आ रहा हूँ, वो अनौपचारिक शब्द है। हम अनौपचारिक में महाशय का प्रयोग करते हैं, उसी पर मैं आ रहा हूँ। सूक्ष्म अंतर होता है, जैसे पर्यायवाची समानार्थी शब्द भी होते हैं तो उनके बीच में सूक्ष्म अंतर होता है। तो महाशय जब हम कहते हैं तो अनौपचारिक उसमें है, जहां हम शब्दावली प्रयोग कर रहे हैं जो औपचारिक है, तो वहां पर हम महोदय का ही प्रयोग करेंगे, महाशय का नहीं करेंगे। जैसे हमने लिखना है पत्र में ही हम लिखते हैं तो महोदय लिखते हैं, महोदय सविनय निवेदन इस प्रकार है, वहां महाशय सविनय निवेदन इस प्रकार है नहीं कह सकते। आप सभा में कहीं बैठे हैं और कोई प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, उनको आप संबोधन दे रहे हैं, तो वहां पर कुछ अनौपचारिकता है, तो वहां पर आप महाशय का प्रयोग करते हैं। तो अनौपचारिक और औपचारिक प्रयोग स्थल बदला हुआ है बस। थैंक यू सर, थैंक यू। और ऐसा ही दोबारा फिर आप कभी वर्कशॉप करेंगे तो फिर मैं जुड़ूंगी। बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत ही धन्यवाद, अच्छा। धन्यवाद जी। सर Q&A और कोई है? सेक्शन, हाँ Q&A सेक्शन में एक था कि प्रसून जी, अगर आप इसे रैप म्यूजिक में गाएंगे तो बड़े कक्षा के छात्र और भी उत्साहित होकर गाएंगे। ये था रेमानंद अच्छा, जी, ये समास तिरुपुर। वाला गीत? जी जी जी। नहीं, वो बच्चों से गवाएंगे, फिर हम नहीं गाएंगे, फिर बच्चों से गवाएंगे बच्चों रैप। से, बच्चे तो ज्यादा छोटा क्रिएटिव या होते हैं हमसे। संक्षिप्त रूप में है समास का अर्थ यही, जी, अगर भेद भी आ जाए तो फिर कविता यह व्यर्थ नहीं, फिर वो ऐसा गाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जी। और मधुराई, मधुराई मैम, यू कैन स्पीक। नमस्कार, सलाम सर। नमस्ते नमस्कार नमस्ते। विनोद सर। नमस्कार बहन, कैसी हैं आप? मेरा प्रॉब्लम ये था कि मैं ठीक हूँ सर। मेरा दिक्कत ये थी कि बच्चे भेद भूल जाते हैं, तो मैंने कुछ बनाया था अरे कि वाह, नवाचार है, बहुत ही अच्छा, यही है मतलब हम सब सरल युक्तियां अपनाएं, ये बहुत अच्छा लगता है। जी बहन बताइए। पुरुष ने निश्चय और अनिश्चय से निज के संबंध में प्रश्न पूछा। अच्छा। जब इस तरह से दिया बच्चों को 2 लाइनों में, जी। तो दूसरे दिन था कंडीशन ये कि वो प्रिंसिपल से जाकर के पूछ रहे थे कि सर ये बताइए कि आपने सर्वनाम पढ़ा है, तो उन्होंने कहा हाँ पढ़ा है, तो अब आप भेद बता दो। अच्छा, तो सर आप ने एक कहा बार कि हमें पंक्ति फिर भेद से तो याद नहीं है। पंक्ति पंक्ति फिर से बोलना बहन, पहली वाली। पुरुष ने निश्चय और अनिश्चय से निज के संबंध में प्रश्न पूछा। अरे वाह, क्या सारे आ बात है, गए। सारे भेद आ गए, सारे भेद आ गए। जी, सारे यही आ तो गए। नवाचार है, यही नवाचार है। और ये इसको इसको ग्रुप पर भेजिए। जी जी मतलब जरूर सर। मैंने कुछ और भी बनाए हैं, मैं आपको पर्सनली भी भेजती हूँ और ग्रुप में भी भेजती हूँ सर। जी जी जी।
बस 2-2 लाइनों में बनाए हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं लिख पाती, लेकिन थोड़ा बहुत कोशिश करती हूँ। नहीं, ये प्रशंसनीय है, ये बहुत ही अच्छा है। देखिए सारे भेद वो आ गए उसमें, है ना, तो ये तो जी। प्रशंसनीय प्रयास है बहन जी। दिक्कत यही थी कि बच्चे भेद भूल जाते थे, बाकी उन्हें याद हाँ, रहता था, उन्हें भेद ही नाम नहीं याद भेद ही रहता था, याद नहीं जैसे आते थे बहुत से बिल्कुल। तो अब वो बहुत पंक्ति सामने है, सूत्र बन गया है, तो उनको याद आएगा। ये तो जी। बहुत अच्छा। और मैंने सर्वनाम का बनाया तो बच्चों ने मुझे विशेषण का बना करके भेजा था, तो हाँ, थोड़ा सा उसमें सुधार की जरूरत है, वो भी मैं आपको भेजती हूँ सर। लेकिन जी। बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं बच्चे। लेकिन बच्चों ने प्रयास किया तो ये तो बहुत ही अच्छा है। अगर बच्चों ने विशेषण का जी बनाया तो बहुत ही अच्छा उनकी तरफ से प्रयास किया गया। ये है, देखिए रुचि बढ़ रही है बच्चों की, तो बच्चे ऐसा प्रयोग जी कर रहे जी हैं। तो बच्चों को जी। हमें सृजन तक लेके जाना है, ये तो बिल्कुल अच्छा है। ब्लूम टैक्सोनॉमी भी तब कहती है कि सृजन तक आए, वहां जहां शुद्धात्मक सोच सकें कुछ, है ना। तो मैं वीडियो तो नहीं दिखा पाती हूँ आपके, लेकिन आपके वीडियोस को ऑडियो में बदल करके मैं बच्चों को जरूर सुनाती हूँ। ये तो बहुत अच्छा, तो मेरा सौभाग्य, मेरा सौभाग्य तो है। जी उससे बहुत प्रेरित हैं बच्चे सर। जी जी। नहीं, और वास्तव में उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ सर, मेरा कि आपसे सौभाग्य। जुड़ पाए हम। नहीं नहीं, मेरा धन्यवाद सौभाग्य। सर, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद बहन। जी जी। ओके, सेशन वाइंड अप करना। जी जी सर। चलिए, तो समापन से पूर्व मैं एक स्मरण करा देना चाहती हूँ। फीडबैक फॉर्म जो है उसकी लिंक दी गई है चैट बॉक्स में, और जब आप ये फीडबैक फॉर्म भरेंगे तभी आपको प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। तो इस ज्ञानवर्धक सत्र के समापन पर मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ डॉक्टर अब्दुल सलाम सर एवं बीजू एस पिल्ले सर को उनके मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के लिए, डॉक्टर विनोद प्रसून सर को उनके समय, अनुभव एवं ज्ञान साझा करने के लिए, और आप सभी उत्साही सहभागियों को जिनकी उपस्थिति ने ही इस सत्र को ऊर्जा का स्रोत बना दिया। सभी की सक्रिय सहभागिता से ये जीवंत हो उठा है। तो चलिए हम सभी एक्स्ट्रा माइल चलते रहे, सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं, बल्कि विवेक, दूरदर्शिता और सार्थक प्रभाव के लिए। धन्यवाद। बहुत सुंदर, सदैव बहुत सुंदर संचालन। सदैव प्रेरित रहे एवं प्रभावशाली बने रहे। अब मैं पुनः आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर सलाम सर को, जो इस सत्र का समापन करें। बहुत ही सुंदर है। Yeah, thank you. I don't know how to thank everyone, especially Dr. Vinod ji and Manisha ji. Very beautifully done. Very happy session. We can say this is, this is learning, happily learning, enjoying. Bachon, like children also do learn through enjoyment, play way, and through artistic, ways. So that was what Vinod ji is always presenting. And actually, when Vinod sir sings, everybody sings, right? So we could see they are, moving their lips and singing. I can see so many people, on the camera. So that is the inspiration. That's the inspiring teacher. So let us, be inspiring to the children. And as I said, we get, these opportunities to learn. So let us take away these, tips and, strategies, innovative strategies given by Vinod sir, so that we can make a difference in our teaching. So thank you, Vinodji, once again, as usual, Yes, sir. wonderfully done. And Manishja ji, actually, Manishja ji was looking forward to, join with Vinod sir जी for नहीं, बहुत अच्छा moderation. लगा उनके साथ, बहुत अच्छा संचालन रहा। जी मेरी हार्दिक Yeah, इच्छा he थी did a सर very कि good job. आप जी आपके जी इसमें मैं कब संचालन करूं, ये मेरी हार्दिक इच्छा थी, और मैंने सलाम सर से कहा था और उन्होंने मेरी इस इच्छा को पूरा किया। धन्यवाद सलाम सर, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद। आपका संचालन बहुत ही अच्छा रहा, और बहुत ही अच्छा लगा है, और सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। जी सुंदर शब्द चयन। धन्यवाद Yeah, सर। thank you. Yeah, very, 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 very polite and very humble and very pleasant presentation. Thank you. So always smiling. So a teacher should be like that. Whatever, unhappiness we have, that should be behind our mind, and we have to present ourselves in front of the children very happy. जी So we are playing many roles. So that is actually an example.
So Vinod ji, Manisha ji, and many of the educators who have joined here, thank you so much. Keep learning with us. Keep learning with Vinod ji. Actually, a lot of people are, they seek doubts and all in the group. So this PPT or some grammatic elements, Vinod sir will post in the chat box. I mean, in the groups. So please take care of all these materials, save them, and make use of them. Thank you so much. Suchirehe, right? Good night. Thank you so much.